Kendall's tau is a useful measure for correlation. So it is an alternative to Spearman's RHO. In correlation, what we do is, like, if we are given these kind of two variables and we need to find out the correlation between them. We could be given like this question, compute Kendall's tau, or we could have been given a scenario and somewhere it would be written we need to compute Kendall's tau. So the questions are like judgment questions, like 5-6 horses run two kinds of races. These kind of data will be for 2 horses. We will do ranks from this data and then we need to find out Kendall's tau. Let us start. We'll be given X and Y. We will make a table like this. Okay. And we will mark A, B, C, D, E, or whatever names, or X, Y, Z. X and Y is there, so we better mark it like A, B, C, D, E over here, because that will be used somewhere in the table. So now you can see that we have these variables X and Y. And if names are given here, you just in bracket write the name, but you can just make the variables as X and Y in the table. And next would be, like, when we have written down this from the question, next what we need to do is, for X and for Y, we need to do ranking. So this ranking would be individual ranking for X and individual ranking for Y column. Like, we don't need to do combined ranking, but we need to do individual ranking for both the columns. Ranking will start from the increasing order. Like, the smallest one we will rank as 1. So make the session interactive and just let me know 3 is, if we rank 3 as 1, then what is the next number greater number than 3 over here, X column? We can see it is 5. Then we'll mark 5 as rank 2. Okay, you can see that our X is there. This ranking is for X. Similarly, then after 5, it is the next number is 6. We will rank Rx as 3 for 6. The next is 7. We'll rank it as 4. Then we'll rank 8 as 5. So now this is the rank for X. In the same way, we will rank for Y. What is the smallest here in Y? It's 1. We will rank it 1. Okay, then next one is 2. We'll rank it 2. Next 3. We'll rank it 3. Next is 4. We'll rank it 4. Next number is 6. We'll rank it 5. Is it clear for everybody? You have any queries or questions? If it is not clear, just ask me. Okay, just try to be focused, because next 2 columns will be very important and they need your focus. They are very easy to understand, but they just need attention. So this was very easy. We have ranked X here, and Ry is, we have ranked Y in increasing order from smallest to the biggest. Some solutions you would find that they have ranked it in decreasing order. So that is also fine. We just need to rank in the same way for X and same for the Y. Okay, so we have ranked here in increasing order. Now, once we have ranked this in increasing order, the next would be CRX. In CRX, what we have done is, we have put this Rx in its order of ranking, like 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. We have put this as 1, 2, 3, 4, 5. Now this will be used, these names. You can see that for rank 1, we have E here. It is against E. Rank 1 is against E, so we will mention here E. Okay. For rank 2, we have C. So I have mentioned over here C. For rank 3, here we can see it is D. So if you find any mistake, just let me know. D. For rank 4, for Rx rank 4, we have A against it. So we'll mention here A.
For rank 5, we'll mention B here. I hope it is clear. We'll mark it like that. अमन ये सेकंड रो गलत नहीं है? Which one? CRY वाला। CRY वाला मैं second. CRY की बात कर रही हूँ, आपने Okay. फर्स्ट पे E को प्लेस कर रहा है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अभी एक इनकम्प्लीट है। ये मैंने अभी इसका आगे का नहीं लिखा। अब ये हमने जो मार्क कर लिया ना, वी हैव मार्क्ड इट एज 1 2 3 4 5 CRX। नाउ CRY इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे का सब CRY से होगा, ये हम छोड़ देंगे। तो CRY में अब क्या करना है, हमने एक रो को ऑर्डर में कर दिया, तो अब इसको हमने बस कॉपी कर लेना है। अब इसके बेसिस पे ही यहाँ इसके आगे की रैंक्स लिखेंगे RY से। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर जस्ट इसको समझाने के लिए मैंने अभी इनकम्प्लीट लिखा है। अब हमने क्या करना है कि CRX से वी विल जस्ट कॉपी ऑल दीज नेम्स E, C, D, A and B। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे इसके अगेंस्ट वी हैव रैंक्स, तो अब हम यहाँ देखेंगे RY में E के अगेंस्ट कौन सी रैंक है Y की। यहाँ पर है ना Y में, मेरे को बताते जाओ इसमें कौन कौन सी है। आप यहाँ देखोगे RY में E के अगेंस्ट कौन सी रैंक है, E इज दिस, तो RY में यहाँ रैंक है 2। ओके, 2 इज अगेंस्ट E फॉर RY, सो वी विल मार्क इट हेयर एज 2। सिमिलरली अब मेरे को नेक्स्ट आप कोई बताओ, C के अगेंस्ट RY में कौन सी रैंक है? 3, करेक्ट, कहीं नोट कर लो, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में होगा। 1 D के अगेंस्ट है, D के अगेंस्ट 1 है, करेक्ट 1 करेक्ट, 4 है 4 है, ठीक है, और B के 5 अगेंस्ट 5। ओके, ये कोई किसी ने नोट कर लिया ना, ये मैं नेक्स्ट वो चला रहा हूँ। ये CRY में व्हाट वी कैन सी इज 2 3 1 4 5, इज इट करेक्ट? करेक्ट। अभी 2-3 सम्स कर लोगे ना, फिर आपको क्लियर और अच्छे से होने लगेगा। बस अभी इतना समझ लो कि हमने इसको पहले ऑर्डर में कर दिया 1 2 3 4 5 के, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने इसके अगेंस्ट जो भी रैंक्स थी वो डाल दी, फिर इन CRY में ये वाली एक्स के पैरेलल रैंक्स लिख दी, इसकी रेटिंग कर दी। नेक्स्ट वाला जो है ना, ये थोड़ी सी गेमीफाइड जैसी है ये सॉल्यूशन, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके गेम की तरह देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। बीच में कंफ्यूज होने लगोगे तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगी। अब ये नेक्स्ट जो है ना, विल गो फर्दर विद, वी नीड टू फाइंड C एंड D। C इज कॉन्कॉर्डेंट वेरिएबल्स और D जो है इट सिग्निफाइज डिस्कॉर्डेंट। फोकस करो कि कॉन्कॉर्डेंट मीन्स ग्रेटर देन एंड डिस्कॉर्डेंट मीन्स लेस देन। तो कॉन्कॉर्डेंट यू कैन जस्ट रिमेंबर इट लाइक दैट। कॉन्कॉर्डेंट से हम C से हम मेटाफॉर दे दो इसको कार, D से दे दो डैशबोर्ड। कार जो है वो बड़ी होती है या डैशबोर्ड? इज कार बिगर और डैशबोर्ड इज बिगर दैट इज इनसाइड द कार? कार इज बिगर, हाँ, इसको ऐसे ही याद रखना, कॉन्कॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट। तो कार इज बिगर ना, तो मैंने आपको बताया था CRY को यूज़ करना है, इनको सबको भूल जाओ पीछे के जो है। अब CRY से ही हमने ये दोनों की वैल्यूज़ निकालनी। वी आर डूइंग इज नाउ फॉर द फर्स्ट वन व्हाट वी विल डू कि वी विल फाइंड कि 2 है ना, जो ये 2 इसके जो नीचे हैं बिलो 2, which are the greater numbers than 2? How many are, like number of items which are greater than 2 below? Can somebody just check and tell? 3 4 and 5 Correct, 3 numbers are there, so we will write here 3. Now next, if we take this 3, how many numbers are? 4 and 5 4 and 2. Okay, and for 1 how many are bigger than 1? 4 and 5, 2 are there. We need to write here 2 numbers. Okay, numbers. For 4 only 5 is there, we will write 1. 5 के नीचे कुछ होगा नहीं, तो लास्ट वाला 0 ही होता है। सिमिलरली जो हम C में निकाला ना हमने, D में आपको क्या कहा था मैंने, ये डिस्कॉर्डेंट है। डिस्कॉर्डेंट का मतलब है कि डैशबोर्ड है ना, कार और डैशबोर्ड इज स्मॉलर। तो हम बिल्कुल सिमिलर वे में जो इसके नीचे स्मॉलर है ना, वो वाले नंबर्स लिख देंगे यहाँ, उसकी काउंट लिखेंगे। तो 2 से कितने स्मॉल है नीचे? 1, एक ही है। ये आप मार्क कर लो अपने नोटबुक में कहीं पर, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है या नहीं। यहाँ 1, ओके। 3 से कितने छोटे हैं नीचे? नीचे ही देखने हैं बस। 1, ओके। 1 से 0, 4 से छोटे 0 एंड 5 का भी लास्ट है तो 0 ही होगा।
ठीक है, क्या क्या है फिगर यहाँ पर? 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0। देन इन क्योंकि ये काउंट्स हैं ना, कॉन्कॉर्डेंट की काउंट्स हैं, हम ये रैंकिंग में से निकाल लिया हमने कि इतनी काउंट्स ग्रेटर हैं, कॉन्कॉर्डेंट हैं। और ये वाली जो काउंट है ये डिस्कॉर्डेंट हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ n मार्क किया है क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्कॉर्डेंट आ गए 8 और नंबर ऑफ डिस्कॉर्डेंट आ गए 2, इनका सम हो गया, इसकी C की समेशन हो गई है 8 और D की समेशन हो गई 2। अभी नेक्स्ट हमने क्या किया, इसमें लिख दिया कॉन्कॉर्डेंट नंबर्स कितने हैं 8, रैंक्स जो हैं कॉन्कॉर्डेंट 8 हैं और डिस्कॉर्डेंट हैं 2। ये फॉर्मूला इतना छोटा सा इसका बस, C minus D divided by C plus D. It is simple. This is C. 8 minus 2 divided by 8 plus 2. ये एक बार आप चेक कर लो, ये ठीक है ना? करेक्ट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई 0। ये हमारे टाउ की साइन होता है, जैसे उल्टा सा टी, ये टाउ का साइन है। नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाउंड आउट दिस वैल्यू ऑफ टी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है। अभी इसमें आप इसमें ध्यान दो, ये नीचे जो स्केल है ना, when we see this scale we have 0 here it is, this side is -1 and over this side is +1, so our value will be between this -1 and +1. We would not get a value of plus 1.8 or plus 2.8 or plus 2.2, 1 से कम ही होगी वैल्यू, और वैल्यू जो होगी हमारी -1 से भी ज़्यादा ही होगी, -1 से कम नहीं हो सकती कि -1/1.4 -2.6 ऐसा नहीं हो सकता। तो इन दोनों के बीच में ही अगर ऐसे नहीं आ रही वैल्यू तो इसका मतलब कुछ तो आपके इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक है। तो इधर द वैल्यू कुड बी 0, सो व्हेन द वैल्यू वुड बी 0 देन व्हाट इट मीन्स इज दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ये जो x एंड y है ना, x एंड y, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इफ द वैल्यू इज इन पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव में है कुछ भी, जैसे अभी हमारी आई है +0.6, then what it means that there is a positive relationship, and if it is in minus then there is a negative relationship. इतना क्लियर है? इसमें एक और चीज़ अभी ऐड करूँगा। if it is positive then the relationship is positive, if it is negative then relationship is negative, and if it is 0 there is no relationship between x and y. okay, now next हम ये देखेंगे ये जो वैल्यू है is it near to 0 or it is near to 1 +1, or if the value is in minus then is it near to 0 or is it near to -1. यहाँ से स्टार्ट करते हैं। if it is near to -1 then the relationship between x and y is strong and negative, and if it is near to 0 then the relationship is weak and negative. If the value is near to 0 but it is positive, then similarly it is weak and positive. If the value is towards +1 then that indicates there is a strong and positive relationship between x and y. So what we have written here is, since the value is positive and closer to +1, it indicates a strong and positive relationship between x and y. Is it clear? बस ये ये आ गया, हमारी इंटरप्रिटेशन हो गई बस। ये आता कम है, कैंडल स्टॉक पर आता है तो फिर 10 मार्क्स का ही आया पास्ट में। यू विल फाइंड इट वेरी इजी। एक और आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, दिस इज फॉर प्रैक्टिस। आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, अभी सॉल्यूशन मत करो, या तो भेज देना मेरे से या फिर हम मीटिंग रख लेंगे। नहीं, टाउ का फॉर्मूला लिख लो, इट इज़ वेरी इजी, C - D डिवाइडेड बाई C + D। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ
4 हॉर्सेज A B C एंड D इन सेकेंड्स, है ना। उनकी जो रेस हुई, रेस में जो इतने सेकेंड्स में वो जीते। हु competed in 2 different kinds of races, compute Kendall's tau। एक तो फ्लैट स्प्रिंट है और एक है जंप स्प्रिंट। जंप स्प्रिंट में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, और एक फ्लैट स्प्रिंट में वो थोड़ा जल्दी भाग लेंगे। पर ये हो सकता है कि जो ई हॉर्स इसमें इसकी रैंक फर्स्ट आई, ये 10 सेकेंड्स में इसने स्प्रिंट क्रॉस कर ली। पर हो सकता है जंपिंग में ये डी है जो वो आगे रहा। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बार इसको सॉल्व कर लेना। एक इसमें स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस्ड रहो, नहीं तो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे। स्ट्रेस्ड होकर अगर आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे, आपके माइंड में और थॉट्स चल रही हैं और ये करोगे ना, तो आपकी मिस्टेक्स होंगी किसी की भी, मेरे से भी होती हैं। जब फोकस्ड होकर करता हूँ तो मिस्टेक्स की चांस बहुत कम हो जाते हैं और बड़ी सिली मिस्टेक्स होती हैं, बस कॉपी पेस्ट करते हुए की मिस्टेक्स हो जाएंगी। तो आप ये ट्राई करो कि जब भी जाओ एग्जामिनेशन हॉल में तो उस टाइम पे, और वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर इन योर रिसोर्सफुल स्टेट। मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, इसके अंदर अगर कोई एक्सेस चाहता होगा तो मैं दे दूंगा उसको। इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी। कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी मैं वीकली बेसिस पे शेयर करता हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ऐसे 40 मिनट्स या 60 मिनट्स के। तो आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसमें कर लेना। इसमें मैं 4 बजे प्लान कर रहा हूँ एक, उसकी भी कुछ साइकोसेंसरी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम 1-2 मिनट में ही थोड़ा अपना स्ट्रेस लेवल कम कर लें। कभी भी स्ट्रेस्ड होते हैं उस टाइम करें क्या, तो कुछ साइकोसेंसरी टेक्निक्स हैं जिससे कि वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कुछ 10-15 लोगों के ऊपर भी ये देखा है, खुद भी देखा कि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड होगे तो आपके मिस्टेक्स होती ही होती हैं, मैंने देखा है। और थोड़ा सा अगर आप रिलैक्सड होके करो तो थोड़ा ईजी हो जाता है, आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और मिस्टेक्स होती हैं जनरली बड़ी सिली, माइनस साइन हटा दिया, एक कुछ फॉर्मूला में से मिस ही कर दिया स्टेप। जो भी चाहता हूँ मेरे को डीएम कर दे, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। फिर इसमें जो भी हम कुछ कर रहे होंगे तो पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। ये नोट कर लिया ना? ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।